يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم في القرآن المجيد فصل لربك وانهر إن شانئك هو الأبتر میرے محترم بھائیوں دوستوں بزرگوں ساتھیوں اللہ رب العالمین کا بے پایا فضل و کرم اور احسان ہے کہ ہم تمام لوگ اس خوشی کے موقع پر اکٹھا ہیں ایک ساتھ مل جل کر کے نماز پڑھنے کا توفیق اللہ رب العالمین نے ہم لوگوں کو بخشا ہے یہ ایک ایسا موقع ہے جس سے پہلے ہم تمام لوگوں کے بیچ بہت سارے لوگ تھے اللہ رب العالمین کی مرضی ہمارے بیچ وہ نہیں ہے یہ چیز قائم رہے گی اور لوگ آتے جاتے رہیں گے جس نبی کی سنت پر ہم لوگ یہاں اکٹھا ہوئے ہیں آج ابراہیم علیہ السلام کے ذبیحے کے تعلق سے میں 10-15 منٹ آپ کے سامنے کچھ کہنا چاہتا ہوں ہم لوگ یہاں اکٹھا ہوئے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے سنت پر آج ہم لوگ عمل کریں گے عمل کرنے کا طریقہ کیا ہوگا ہم کیسے عمل کریں گے کیوں عمل کریں گے ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العالمین کو خوش کرنے کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے توحید کو عام کرنے کے لیے کئی قربانیاں پیش کی ہیں کئی امتحانات دیے ہیں ایک دو امتحان نہیں بلکہ یہ ایک ایسے نبی ہیں اللہ رب العالمین نے ان کی زندگی میں ڈھیر سارے امتحان لیے کل خطبہ جمعہ میں نے کچھ وضاحت کی تھی لیکن آج تھوڑا سا خلاصہ آپ کے سامنے میں پیش کروں گا اللہ رب العالمین قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے فصل لربک وانحر آپ اللہ رب العالمین کے لیے نماز پڑھیں وانحر اور قربانی کریں یہ آیت اس بات پر دلالت کرتی ہے یہ آیت اس بات کا اعلان کرتی ہے اس آیت سے یہ بات ثابت ہوتا ہے کہ ہمارے لیے ضروری کام کون سا ہے اس آیت کے ترجمہ کرنے سے یہ بات آپ کے سامنے واضح ہو جائے گی کہ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں کہتا ہے فصل لربک وانحر آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے وانحر اور قربانی کریے پہلے جس چیز کا ذکر ہو رہا ہے ہم اور آپ بیٹھ کر کے غور کریں اور سوچیں کہ ہمارا اللہ رب العالمین کے حکم پر کتنا عمل ہے اللہ رب العالمین کے آرڈر پر ہم نے کتنا عمل کیا وانحر اور پھر قربانی کرنی ہے یعنی علماء کرام کا اس بات پر فتویٰ ہے کہ اگر لوگ نماز نہیں پڑھتے اگر لوگ نماز کے کنارے اور قریب نہیں جاتے تو بقرعید کے دن اس آیت کے حساب سے انہیں قربانی کرنے کا کوئی حق نہیں ٹھیک ہے اس کی صاف اور صحیح وضاحت آپ کو معلوم نہ ہو لیکن آج آپ یہ جان لیں کہ ہمارے قربانی کرنے سے پہلے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کی بات مان کر کے نماز پڑھنے پڑیں اس آیت کے ٹکڑے میں سب سے پہلے نماز کا ذکر ہے اپنے رب کو خوش کرنا ہے بعد میں اس سنت پر عمل کرنی ہے لیکن چونکہ ہمیں بکرے کی سائز دیکھنی ہے بکرے کی تندرستی دیکھنی ہے اور ماحول اور معاشرے میں ہمیں لوگوں کو دکھلانا ہے کہ ہم کتنے امیر ہیں
हमें लोगों में साबित करना है कि हमारी अमीरी कैसी है। लेकिन अगर आप ऐसा करते हैं तो शायद इस आयत का तर्जुमा आपको नहीं मालूम। इस आयत में अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है कि पहले आपको नमाज पर गौर फिक्र करनी है, बाद में कुर्बानी करनी है। यानी अगर इसके उल्टा करते हैं तो आप होशियार हैं, समझदार हैं, अक्लमंद हैं, आपको मालूम होना चाहिए कि हमारा अंजाम क्या, हम कहाँ जा रहे हैं, हमें किस तरफ जाना चाहिए था, हमारा रुख किस तरफ है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने पूरी जिंदगी अल्लाह रब्बुल आलमीन को अपना इम्तिहान दिया। आखिर में इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो जिसका ताल्लुक आज के दिन से है, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ख्वाब देखा कि मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन के रास्ते में अपने बेटे को ज़बह कर रहा हूं। यानी कोई ऐसी कुर्बानी पेश करनी थी जिस कुर्बानी को पेश करने से अल्लाह रब्बुल आलमीन खुश हो जाए। ढेर सारे दुम्बा, बकरे, भेड़, ऊंट, इस दौर की जो कुर्बानी थी, यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन को राजी करने के लिए ढेर सारी कुर्बानी अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने उन्होंने पेश की, लेकिन कबूल नहीं होती। उन्हें मालूम ये चला कि अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन इस आखिरी वक्त में कोई महबूब चीज मांग रहा है तो मेरे पास एक औलाद है। अल्लाह रब्बुल आलमीन किस चीज का अंदाजा, किस चीज का इम्तिहान उनसे लेना चाह रहा है उस उम्र में, कि जिस उम्र में उनका लख्ते जिगर नूरे नजर एक ऐसा प्यारा, लाडला, चहेता, बहुत दिनों के इंतजार करने के बाद एक बेटा पैदा होता है। फलम्मा बलगा मा उत्सा क़ाल या बुनय्या इन्नी अराका फिल मनाम फंजुर फस्मा का मा तरा। कहते हैं कि अल्लाह बेटे से सवाल करते हैं, मशवरा करते हैं। उस उम्र में, जिस उम्र में लोग बेटों की ख्वाहिशात पूरी करते हैं, उस उम्र में, जिस उम्र में लोग बेटों की जरूरतें पूरी करते हैं, जो बेटा मांग ले, जो बेटा सवाल कर बैठे, उसकी जरूरत को पूरी करने के लिए हम जान दिल लगा देते हैं। पूरी जिंदगी की कमाई, पूरी जिंदगी की दौलत हम उस चीज में लगा देते हैं कि हमारा बेटा किस चीज की डिमांड कर रहा है। बाप ऐसे उम्र में ख्वाब पूरा प्लानिंग करने के बाद, पूरा सोचने के बाद इस नतीजे पर पहुंचा, यानी हमारे नबी इस नतीजे पर पहुंच रहे हैं कि मैं अपने बेटे ही को कुर्बान कर दूं। लेकिन चूंकि मशवरा लेना था, एक वो नबी जो अपने बेटे को अल्लाह रब्बुल आलमीन के रास्ते में कुर्बान करने के लिए पूछ रहा है, जवाब क्या दे रहा है? बाप का सवाल है कि मैं तुम्हें अल्लाह रब्बुल आलमीन के रास्ते में ज़बह करना चाहता हूँ, मैं पेश करना चाहता हूँ ताकि मेरा खुदा मुझसे खुश हो जाए। बेटा कहता है क़ाल या तिफ़ल मा तुमर सतजिदुनी इंशाअल्लाह मिनस साबिरीन। बेटे का जवाब देखिए। आज हम अपने बेटों से कुछ कहते हैं, अपनी औलाद से कुछ कहते हैं, वो कुछ करते हैं। एक नबी अपने बेटे से कुर्बान होने के लिए मशवरा कर रहा है, दूसरा नबी अल्लाह रब्बुल आलमीन के रास्ते में कुर्बान होने के लिए तैयार हो रहा है। क्या मंजर रहा होगा, क्या माहौल रहा होगा? इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे से कहा मैं तुम्हें ज़बह करना चाहता हूँ। बात पक्की हो गई, बेटा राजी हो गया। अब इसकी तशरीह में उलमा किराम लिखते हैं कि इसकी सूरत क्या होगी। गए और उनकी अम्मी से मशवरा लिया, कहा कि क्योंकि औरतों का दिल बड़ा नर्म होता है, बताना नहीं चाहा, हिकमत थी इसके बताने में, कहीं बता देते मामला गड़बड़ हो जाता। छोटा सा बेटा राजी है, बाप राजी है, लेकिन बाप को खबर नहीं हो रही है, क्योंकि उन्हें मालूम था, नबी थे, उन्हें मालूम था कहीं ऐसा ना हो प्रोग्राम गड़बड़ हो जाए। कहा ठीक है, अपनी बीवी से कहते हैं कि इन्हें तैयार कर दिया जाए, एक जगह हम लोग प्रोग्राम में जा रहे हैं। आज जब हुज्जाते किराम जाते हैं तो 3 जगह शैतान को पत्थर मारते हैं, 3 जगहों पर शैतान को पत्थर मारते हैं, क्योंकि बाप, बेटा और माँ तीनों लोगों को शैतान बहका रहा है। माँ से कहते हैं, कह करके निकल जाते हैं, तैयारी पूरी हो जाती है, उसकी तफसील में मैं न जा करके खुलासा आपके सामने पेश कर रहा हूँ। निकल जाते हैं, शैतान फौरन घर पहुंचता है और कहता है अपने नूरे नजर, लख्ते जिगर, अपने प्यारे बेटे को तुमने कहाँ भेज दिया, कहाँ चला गया तुम्हारा बेटा, कुछ जानते हो, कुछ जानकारी है?
کہا نہیں، ہم سے بتلایا ہے کہ میں ایک پروگرام میں لے کر کے جا رہا ہوں. کہا کچھ نہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، ایسا نہیں ہے. یہ شیطان بھی بڑا پکا اور سچا وفادار. کہا کہ یہ اللہ رب العالمین کے راستے میں ذبح کرنے لے جا رہے ہیں. بات کو الٹ پلٹ کر کے پیش کرنے کے بجائے ٹھیک معاملہ ان کے سامنے رکھ دیا. کہا کہ بیٹے کو تو ذبح کرنے لے جا رہے ہیں اللہ رب العالمین کی راہ میں. کہا کوئی بات نہیں، اگر ایسا پروگرام ان کا ہے تو بہت اچھا ہے. شیطان نے کہا دیکھیے یہاں ہماری بات نہیں بنی. راستے میں جا کر کے بیٹے سے کہہ رہے کیا معاملہ ہے، کہاں جا رہے ہو؟ کہا کسی پروگرام میں جا رہے ہیں. تشریح میں الگ الگ لوگ دعوت کا ذکر کرتے ہیں. کہا اللہ رب العالمین کے راستے میں تمہارے والد تمہیں ذبح کرنے لے جا رہے ہیں. مشورہ پہلے لیا تھا، معلوم نہیں تھا کہ آج ہی ذبح کیا جائے گا. کہا کہ ذبح کرنے لے جا رہے ہیں. کہا ٹھیک ہے، اگر اللہ رب العالمین کے راستے میں ذبح کرنے لے جا رہے ہیں تو میں اللہ رب العالمین کے راستے میں قربان ہونے کے لیے راضی ہوں، خوشی خوشی جان دینے کے لیے تیار ہوں. چونکہ میرے والد محترم ہیں، اگر میرے بارے میں یہ فیصلہ لیتے ہیں تو کچھ نہ کچھ ضرور بہتر ہوگا. ورنہ ایسی عمر میں اگر کوئی اپنے بیٹے کو اللہ رب العالمین کے سامنے پیش کر رہا ہے، کوئی نہ کوئی حکمت ہوگی. شیطان وہاں بھی نکار دیا گیا. ایک دوسری جگہ، تیسری جگہ اب جا کر کے، کیونکہ ان شیطان یجری من الانسان کمجری الدم. آپ یہ نہ سوچیں کہ شیطان ہمارے قریب کیسے آ جائے گا، ہم تو بہت طاقتور ہیں، ہم تو بہت پاک صاف رہتے ہیں. ایسا کچھ نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اس چیز سے اس بات کا اندازہ لگتا ہے کہ شیطان انسان کے جسم میں خون کی طرح دوڑتا ہے. نبی کو بہکانے کے لیے شیطان پہنچ گیا، اور پہنچنے کے بعد میں کہتا ہے اس عمر میں تمہیں ایک بیٹا ملا ہے، اللہ رب العالمین نے اتنی بڑی نعمت سے تمہیں نوازا ہے، کہاں جا رہے ہو لے کر کے؟ کون سا خواب دیکھ لیا، کون سا پروگرام بنا لیا، کس کو خوش کرنا چاہتے ہو؟ کیا ملے گا اس سے؟ تمہارا بیٹا اس عمر میں تمہارے ہاتھ سے چلا جائے گا. نبی ہے، ہمارا خواب ڈراؤنا ہوتا ہے. ہم جب خواب دیکھتے ہیں سپنے کی طرح دیکھتے ہیں، ڈرتے ہیں، صرف اس میں اور کچھ نہیں ہوتا. ایک نبی خواب دیکھتا ہے، اس کا نتیجہ سمجھ میں آتا ہے کہ جو میں خواب دیکھ رہا ہوں اس میں اللہ رب العالمین کی کوئی نہ کوئی حکمت شامل ہے. اللہ رب العالمین کے حکم کے مطابق وہاں پہنچتے ہیں جہاں اللہ رب العالمین کے آرڈر کے مطابق ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنا چاہ رہے ہیں. پورا پروگرام ہو گیا، بچے کو تیار کر لیا، خود تیار ہو گئے. پوری زمین اللہ رب العالمین ایک ایسے بندے کا امتحان لینا چاہتا ہے جس کی امت میں سب سے زیادہ، جس کی نسل میں سب سے زیادہ نبی آئے، ایسے نبی کا امتحان ہو رہا ہے. بیٹے کو لٹا دیتے ہیں اور اس کے گردن پر چھری چلانا چاہتے ہیں. اس کو اللہ رب العالمین کے راستے میں قربان کرنا چاہتے ہیں. اللہ رب العالمین کو خوش کرنے کا ایسا جذبہ، ایسی سوچ اور ایسی طاقت، یہیں پر میں بات کو روک رہا ہوں. آج جب ہم جاتے ہیں، ابھی ہم جا کر قربانی پیش کریں گے، قربانی پیش کرنے کے وقت ہمارے دماغ میں پروگرام ہوگا کہ ابھی ہم بکرا ذبح کر لیں گے، یہ والا حصہ وہاں رکھیں گے، وہ والا حصہ وہاں رکھیں گے، اس کو ان کو دیں گے، اس کو ان کو دیں گے، یہ خود کھائیں گے. آپ کے مال میں، آپ کے بکرے میں، آپ کے اللہ رب العالمین کے قربان کیے ہوئے چیز میں غریبوں، مسکینوں، لاچار، مجبور، پریشان حال لوگوں کا حصہ ہے. آپ انہیں اس میں سے کھلائیں، ان بھوکے اور پریشان لوگوں کا پیٹ بھریں. ایسا نہیں ہے کہ آپ اس کو اسٹور کر لیں، آپ اس کو اپنے پاس رکھ لیں اور کئی دنوں تک اس کو اپنے لیے ذخیرہ بنائیں. ایسا نہیں. آپ کو غریبوں اور مسکینوں کو کھلانا ہے، خود کھانا ہے. کیونکہ جب آپ خوشحال ہوں گے اور آپ کا ایک پڑوسی بغل میں، آپ کا ایک پڑوسی بھوکا ہوگا، آپ کا ایک پڑوسی ایک گوشت کے ٹکڑے کا محتاج ہوگا، تو ہماری خوشی کس کام کی؟ ہمیں ان کی ضرورتیں پوری کرنی ہے. ہمیں محتاج اور پریشان حال لوگوں کا خیال کرنا ہے. آج کے دن معلوم ہونا چاہیے کہ ہم نے کھایا ہے تو ہمارا کوئی پڑوسی بھوکا نہ رہے. کیونکہ
हम जिस नबी के मानने वाले हैं उनका सुन्नत रहा है, उनका तरीका रहा है। अपना भूखे हैं और कोई भूखा पहुंच गया, उसको निवाला उठा करके दे दिया। पता किया आप खाए हो? कहा हम खाए नहीं है, हम बहुत दिन से भूखे हैं, अभी अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से कोई इंतजाम होगा। ऐसे ऐसे सहाबा कराम, ऐसे ऐसे नबी और रसूल के हमारे आइडियल हैं, हमें उनसे देखना चाहिए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपना काम तमाम करने के लिए तैयार हो गए, प्रोग्राम बन चुका। अल्लाह रब्बुल आलमीन की मसलहत, सारा मामला खामोश है। अभी एक बाप एक बेटे को ज़बह कर देगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने देखा कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम इम्तिहान में एकदम कामयाब है, तैयारी कर लिया, सबको बता दिया, सब पूरा प्रोग्राम बन चुका, आप ज़बह करने जा रहे हैं। अगर ज़बह हो जाता तो बात और आगे चली जाती, लेकिन नहीं, अल्लाह रब्बुल आलमीन को सिर्फ इम्तिहान लेना था। अल्लाह रब्बुल आलमीन सिर्फ इम्तिहान लेना चाह रहा था कि इनकी तैयारी कितनी पक्की है, ये हमको राजी और खुश करने के लिए क्या कर सकते हैं। आज हम बकरा खरीदने बकरा मंडी में तो जाते हैं, लेकिन नमाज पढ़ने मस्जिद में नहीं जाते। घंटों घंटों बकरों की तलाश में हम गुजार देते हैं, महीनों महीना हम बकरों को ढूंढने में गुजार देते हैं, और बकरे के तलाश करने में हम नमाज छोड़ देते हैं। आप यकीन मानिए, ऐसी दिखावा है, ये रियाकारी है, कोई इसका अजर और सवाब आपको नहीं मिलने वाला। पहले का दौर था कि बकरे आग आती और जलाकर चली जाती, मालूम हो जाता कि फलाने के बकरा फलाने कुर्बानी कबूल हो गई। आज कुछ नहीं, उसका अंदाजा ही नहीं है। अब यह है कि हमारे कारनामे और करतूत से मालूम होगा कि हमने हमारी कुर्बानी कबूल हुई कि नहीं। बकरा ज़बह कर दिया, बाहर मांगने वाले खाने वाले, ठीक है, आपका देने के बारे में इख्तलाफ है, लेकिन खिलाने के बारे में कोई शक नहीं। एक आदमी आ रहा है, हम बिला मुबालगा उसको खिला सकते हैं, खिलाएंगे, खिलाना जरूरी है। खिलाने के लिए तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई मकाम ताकीद भी की है, खिलाएंगे। कहा मतलब कुर्बानी कर लिए और दरवाजा बंद करके सब लोग घर में है। आप यकीन मानिए, ऐसी कुर्बानी का कोई फायदा नहीं कि आपका पड़ोसी भूखा हो और आपके लोग जो है परेशान हो। फलम्मा अस्लमा वतल्लहु लिलजबीन, लिटा दिया पेशानी के बल, और उसके बाद में अब ज़बह करने जा रहे हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आवाज लगाई, वनादैनाहु या इब्राहीम कद सद्दक़्ता रुया इन्ना कज़ालिका नज़िल मुहसिनीन। आखिर में अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है कि इब्राहीम, आपने अपना वादा सच कर दिखाया, मुझे खुश करने के लिए आपने अपने बेटे की कुर्बानी पेश की, बस हो गया। बेटे को ज़बह नहीं करना है, दुम्बा आसमान से आता है, उनके नजर के सामने वो ज़बह हुआ होता, उनकी छुरी उन दुम्बे पर चल जाती है, और उसके बाद में अल्लाह रब्बुल आलमीन उस बच्चे को सही सलामत महफूज रखता है, उस बच्चे को उठा लेता है और ये ऐलान करता है कुरान मजीद में कि इब्राहीम, तुमने अपने वादे को सच कर दिखाया। नबियों का इम्तिहान ऐसा हुआ करता था, औलाद की कुर्बानी के लिए तैयार होते हैं। हमारा इम्तिहान ऐसा है कि हम एक मजबूर, एक लाचार, एक परेशान हाल की मदद नहीं कर सकते। दोस्तों, जब तक आपका पड़ोसी, आपका भाई, आपका चाहने वाला, आपको मानने वाला आपसे खुशहाल नहीं होगा, तब तक आप मुकम्मल मोमिन नहीं हो सकते। लिहाजा इस वाक़े से इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जिंदगी के तो ढेर सारे वाक़यात हमारे लिए नमूना है, लेकिन आज के प्रोग्राम में, आज की महफिल में बस इसी पर मैं अपनी बात का इख्तिताम करता हूँ कि अब हम चले और कुर्बानी पेश करें। थोड़ा सा एक और मशवरा है, अभी हम घरों पर जाएंगे, कुर्बानी करेंगे। किसी को कुर्बानी के ज़बीहे से कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, यह हमारा और आपका सोच होना चाहिए। अभी हम घर पहुंचेंगे, मसला यह है कि ज़बह करते वक्त क्या पढ़ा जाए, किसके नाम से ज़बह किया जाए, कौन इसका मालिक होगा। लिहाजा मेरा ये कहना है बिलखुसूस अपने नौजवान साथियों से कि ऐसी नौबत ना आए, ऐसा माहौल ना बने घर में कि कुर्बानी करते वक्त पूछा जाए किसके नाम से कुर्बानी होगी। आप ऐसा माहौल ना बनने दें। मेरे नौजवान भाइयों, अपने वालिदैन की आप कद्र करें,
अपने वालिदैन, मैंने कल एक पॉइंट का इशारा किया था कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बाप आजर से कहा था, वालिद मोहतरम समझाने की कोशिश की थी और बड़े उल्फत और बड़े नरमी और बड़े अच्छे अंदाज में अपने बाप को मुखातब करके समझा रहे हैं। लिहाजा आज कुर्बानी के वक्त आप जब बकरा अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने पेश करें तो आप उस बकरे पर जो है अपने वालिदैन का नाम लेने की कोशिश करें। ऐसा ना हो कि बाप घर के दरवाजे पर बैठा हो और घर से औरतों की आवाज आए, बच्चों की आवाज आए कि छोटे से नाबालिग बच्चे के नाम कुर्बानी होगी। ऐसा नहीं है। कुर्बानी जब आप मुकम्मल ईमान वाले होंगे तब आपके बारे में सोचा जाएगा। आपके वालिदैन आपके सामने मौजूद हैं, आप उनको तरजीह दीजिए। ऐसा नहीं होगा कि आपके नाम कुर्बानी हो जाएगी तो आपको जन्नत का सर्टिफिकेट मिल जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं। आपके वालिदैन खुश होंगे तब मुमकिन है कि आपको जन्नत के सर्टिफिकेट मिल जाए। आपके नाम कुर्बानी करने से आप जन्नती नहीं हो जाएंगे। आपका बाप खुश हो, आपकी माँ खुश हो, आपके वालिदैन आपसे राजी हो, इस पर भरपूर आप अमल करने की कोशिश करें, क्योंकि हर बच्चा बड़ा होगा, बूढ़ा होगा, इंशाअल्लाह उसकी जिंदगी रही तो उसके नाम से भी कुर्बानी होगी। लिहाजा इसमें बहुत ज्यादा मुगालते में आप न पड़िए कि किसके नाम किया जाए, कौन मुनासिब है। आपके पास वालिदैन हो, उनका नाम उनके सामने पेश किया जाए। दूसरी चीज, बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर कह करके उनका नाम लेकर के आप अल्लाह रब्बुल आलमीन के रास्ते में कुर्बानी पेश करें। और इस ताल्लुक से मैं समझता हूँ कि तकरीबन सारी बातें आपको मालूम होंगी। लिहाजा कोई इख्तलाफ, कोई आपस में बुग़्ज़, कीना, हसद और कोई तनाव अगर हो तो ऐसे मौके से मिलजुल करके इंसान एक दूसरे से अपनी तमाम कमियों को खत्म कर ले, माफी मांग ले और तौबा कर ले। क्योंकि मिलजुल के रहने और आपस में ताल्लुकात बरकरार करने का नाम इस्लाम है। एक दूसरे को उल्फत और मोहब्बत से देखना, उल्फत और मोहब्बत से मिलने का नाम इस्लाम है। लिहाजा मैं अपने तमाम दीनी भाई और अपनी माँ और बहनों से गुजारिश करूंगा कि अगर वालिदैन हैं तो उनका नाम आप तजवीज़ करें, वालिदा हैं तो उनका नाम आप तजवीज़ करें। कोई इख्तलाफ नहीं होना चाहिए। बच्चों के नाम से जो कुर्बानी करने का रवाज और चलन हमारे बीच में आम है, इसका कोई फायदा नहीं। बच्चा बड़ा होगा, उसके बारे में उसकी तकदीर उसको सोचा जाएगा, लेकिन ऐसा ना हो कि कोई आप कदम उठाएं और खुशी के दिन आपके वालिदैन आपसे नाराज हो जाएं। बस मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन तो हम लोगों के दरमियान जो कमियां हो, इन कमियों को दूर फरमा। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम लोगों में जो लोग परेशान हाल हों उनकी परेशानी दूर फरमा। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम लोगों में जो लोग कर्जदार हों उनको कर्ज अदा करने की तौफीक अता फरमा। और मैं दुआ करूंगा बिलखुसूस कि अल्लाह रब्बुल आलमीन तो हमारी मुल्क की अमन और शांति बरकरार रख। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम जिस मुल्क में रहते हैं हमें इस मुल्क में खुशहाल रखने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम लोगों में जो लोग बीमार हैं उनकी बीमारी दूर कर फरमा। आज के मौके से दुआ करने का मकसद ये होता है, ढेर सारे लोग इकट्ठा होते हैं और इन लोगों के बीच में दुआ करने का एक अलग ही तरीका होता है। लिहाजा हाथ उठा करके दुआ करने के बारे में ऐसे मौके पर उलमाए कराम का इख्तलाफ है। लिहाजा दुआया कलमा हम यूं ही पेश करेंगे और आदमी इसका जवाब देगा, आमीन कहेगा और वो हमारी दुआ में शामिल होगा। चूंकि ऐसे मौके पर दुआ की जाने वाली वो आम दुआ होती है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे जो दिन है कुर्बानी के और इन दिनों को बेहतरीन से हम लोग दरमियान कबूल फरमा। अल्लाह रब्बुल आलमीन जो हम लोगों में कमियां और कोताहियां हैं तो उनको दूर फरमा। आज से लेकर के और चौथे दिन तक असर के बाद यानी मगरिब से पहले तक कुर्बानी हम कर सकते हैं बिला मुबालगा। इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई इख्तलाफ भी किसी का नहीं है। लिहाजा आज का दिन लेकर के और मगरिब से पहले तक, आखिरी दिन के मगरिब से पहले तक हम कुर्बानी पेश कर दें। असर के बाद इसलिए कहा जाता है ताकि सब बाहर उठ करके देव करे खिला उला करके खत्म कर दिया जाए। जखीरा करना, इकट्ठा करना और उसको भर करके रखना, इसकी कोई सबूत और नहीं है। हाँ ठीक है, इजाफा है, देखा जाएगा, लेकिन कोशिश ये रहे कि तमाम लोग मिलजुल करके उसको खाएं, खिलाएं और खुश रहें। ये ऐसा मौका है। आज बकरे की कुर्बानी है तो लोग खा रहे हैं और खिला रहे हैं। लिहाजा ये एक ऐसी ईद है जिसमें हर आदमी एक दूसरे आदमी की खुशी के साथ मिले। अब दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम लोगों को नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।